तुम आ गई आज। लास्ट टाइम हमने वो किया था, telescope, and the final image was formed at distance of distinct vision. Now in a telescope, the final image could be formed at infinity also. So when the image is formed at infinity, it is called normal adjustment. The final image infinity पे बनती है, it is called normal adjustment. रे डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं. ऑब्जेक्टिव, मैंने बताया था aperture of objective of telescope is always large. Its focal length is also large. This is objective. Since it's near the object, that is why it's called objective lens. डायग्राम बनाओ इतना, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे. So this is objective lens of telescope. यहाँ पे इसका फोकस ले लेते हैं, F0. F0 dash. And the object is far off. It is at infinity or at a large distance. Rays will be parallel to principal axis. I mean, rays will be parallel to themselves, but we won't take them parallel to principal axis. और यहाँ पे कहीं इसका पहला इमेज बनेगा. एक और रे ले लो पैरेलल, another ray parallel, join them over here. यहाँ पे इमेज बन गया. So this is the image formed by objective. A and F0 both coincide. A और F0 दोनों coincide कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर पर है, generally we view astronomical object, heavenly bodies, they are very far off. To capture maximum of the light, we have large aperture of objective, and its focal length is also high, so that magnifying power of telescope is also high. अब यहाँ पे पास में हम एक आईपीस बना लेंगे. आईपीस का अपर्चर इस ऑब्जेक्ट से स्लाइटली बड़ा ले लेना. दिस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस OE. एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट में FO and FE both will coincide. FE will also be the same point. इतना डिस्टेंस पे FE है दोनों साइड में. दिस इज FE and this is also FE. FE dash ले लो. So focus of objective lens and the focus of eyepiece lens will coincide in normal adjustment. फोकस दोनों का कोइंसाइड करेगा. जबकि इफ यू रिमेंबर, प्रीवियस वाले में जब इमेज डी पे बनती है, FE को हम यहाँ पे कहीं लेते हैं, सो दैट दिस FO इज इन बिटवीन FE एंड द OE. दैट वाज इन द केस ऑफ
when the final image is formed at D. अब क्या होगा? One ray parallel to principal axis passes through focus, another through optical center. ये दोनों rays parallel होंगी, never meet. So image is formed at infinity. So this is the ray diagram for normal adjustment. This is length of the tube, which is equal to FO plus FE. So there are two formulas. One is L is FO plus FE. दूसरा magnifying power is FO by FA. इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है. क्वेश्चन 81 करना. असाइनमेंट का क्वेश्चन 81. Power of a lens is 1 by F. F is in meter. Or 100 by F when F is in centimeter. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो उसका पावर भी पॉजिटिव होता है. कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर इज आल्सो नेगेटिव. एंड व्हेन द लेंसेज आर इन कॉम्बिनेशन, वो जनरली बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में वो यूज नहीं होना चाहिए वैसे. You know that powers are algebraically added. P1 plus P2 plus P3 and so on. If lenses are in contact, their powers are added algebraically. यहाँ पे लिखोगे rays from distant object. तो तुम्हें ये बताना है कौन सा लेंस आईपीस के लिए सुटेबल है, कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए सुटेबल है. ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ
भी ज्यादा होनी चाहिए, अपर्चर भी ज्यादा होना चाहिए. एज यू कैन सी, फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द लेंस. यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर और मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स. तो कौन सा लेंस प्रेफर करोगे ऑब्जेक्टिव के लिए? L1, L2, L3. अपर्चर सबसे ज्यादा L1 का है ना? और उसकी फोकल लेंथ भी सबसे ज्यादा है. इफ यू सी द लेंस 1, its aperture is maximum 8 centimeter. At the same time, if you take the focal length, it would be 1 by p. तो इसका ये मीटर में हो गया, और 100/3. आउट ऑफ द थ्री लेंसेज, अपर्चर एंड फोकल लेंथ सबसे ज्यादा L1 का है. सो विल प्रेफर L1 एज अ ऑब्जेक्टिव. L2 L3 का दोनों का अपर्चर इक्वल है. आईपीस का अपर्चर छोटा होना चाहिए एंड फोकल लेंथ कम होनी चाहिए. तो आउट ऑफ L2 L3 किसका फोकल लेंथ छोटा है? बस. सो L3 विल बी यूज एज, L1 विल बी यूजिंग एज ऑब्जेक्टिव, L3 एज आईपीस. मान लो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट होता दैट इफ दिस कॉम्बिनेशन is used in normal adjustment. If this combination is used in normal adjustment, what will be the magnifying power and what will be the length of the tube? कर लो. If this combination is used in telescope for normal adjustment, if this combination of lenses used in telescope for normal adjustment, find length of the tube and the magnifying power. हो गया? एफ ओ कितना आ रहा था हमारा? 100/3. एफ ई कितना है? 10 सेंटीमीटर. सो मैग्नीफाइंग पावर इज FO/FE. What about length of tube? FO plus FE. Question 92 is similar. 92 भी कर लो अटेम्प्ट. असाइनमेंट का 92.
क्वेश्चन है, नीड में डायग्राम दिया हुआ है और उनकी फोकल लेंथ भी दे रखी है। हो गया। डायग्राम को देख के तो लग रहा है अपर्चर किसका, बी का अपर्चर ज्यादा है ना, तो बी विल बी यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव्स की फोकल लेंथ भी ज्यादा है। ए विल बी यूज एज आई पीस। क्वेश्चन 180 करो, 180। हो गया। अनन्य क्या आंसर आ रहा है? तो मेरा आया नहीं अभी तो। पहले वाले को ना, पहले केस में तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है ना। एफ वाज बिन गिवन 140 सेंटीमीटर। एफ ई कितना है? 5। तो इफ यू आर यूजिंग नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, एफ ओ बाई एफ इक्वल टू दिस 140/5। 28 हो गया।
अब नेक्स्ट केस में ये इसने बोला द फाइनल इमेज इज फ्रॉम दैट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे इसका इमेज है. तो यू कैन यूज द रेडीमेड फॉर्मूला व्हेन द फाइनल इमेज is at D, that is 25 सेंटीमीटर. तो क्या फॉर्मूला था, याद आ रहा है? एफ ओ बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी. उल्टा हो जाता है इसमें. इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोप डी बाई एफ ई था ना, एफ ई बाई डी हो जाता है. यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 28 इंटू 1.2. 33.6 ये इसका आंसर है. इसी क्वेश्चन का अगर थर्ड पार्ट में देखता हूं कि सपोज द टेलीस्कोप इज, लिख लो, टेलीस्कोप इज फोकस्ड, लिखो टेलीस्कोप इज फोकस्ड on an object which is 2 meter from the objective, which is the distance 2 meter from the objective, and final image is formed at D, and final image is formed at distance of distinct vision 25 centimeter. Find magnification and length of the tube. Find magnification and length of the tube. कर लो. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, उससे वी नॉट निकाल लो. फाइनल इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, उसको यूज करके यू ई निकाल लो, दोनों को ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा. लेंथ ऑफ द ट्यूब वुड बी वी ओ प्लस मॉड ऑफ यू ई. करो. थिन लेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, दो बार. एक बार ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बार आईपीस के लिए. कर लो. यू हैव टू यूज थिन लेंस फॉर्मूला.
2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस का देख लो, कैसे करोगे। U0 इज -200, V0 निकाल लो, तो 1/F0 इज इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/U0। सॉल्व करो, V0 बताओ कितना आ रहा है। So 466.6. V0। Yes. ओके। V0 विल बी पॉजिटिव। काफी बड़ा नंबर आ रहा है। Sir, 1400/3. हम्म। दिस इज V0। अब आईपीस का करते हैं। आईपीस लेंस के लिए हमें V0 ऑलरेडी मालूम है, VE मालूम है इनफैक्ट। ई फॉर आईपीस, वी इमेज डिस्टेंस। सिंस फाइनल इमेज डी पे बन रही है, तो दैट विल बी -25 सेंटीमीटर। VE इज -25 सेंटीमीटर। अब लेंस फॉर्मूला यूज कर लो। 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। ये नेगेटिव आएगा। -25/4. हम्म। -25/4. 6 आएगा। Yes, sir. So the length of the tube will be VO plus mod of UE. This would be the length of the tube. VO plus UE का mod। अब लेंथ ऑफ ट्यूब निकालने के बाद इसकी मैग्नीफाइंग पावर, अब इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता बिकॉज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस एस। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे अब। तो वी ओ 1400/3, यू ओ था -200, वीई था -25 सेंटीमीटर, एंड यूई इज -25/6। 6 ऊपर आ जाएगा। -14, minus sign signifies that the final image is inverted
and it is 14 times the size of object. तो वो रेडीमेड फॉर्मूला तभी यूज होगा जब या तो इमेज इन्फिनिटी पे होगी और इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और इमेज बनेगी या तो डी पे या 25 उसका इन्फिनिटी पे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज, अदरवाइज ऐसे ही करना पड़ेगा इसको. And then you have refracting type of telescope. For higher magnifying power, we can't use refracting type of telescope because it is very difficult to manufacture lenses of higher aperture because lens is made of glass and glass is a fluid which flows over a period of time. तो ग्लास लेंस जो होते हैं वो नीचे से थिक हो जाते हैं, ऊपर से थिन हो जाते हैं, तो उनकी अपर्चर और फोकल लेंथ चेंज हो जाती है. तो हायर मैग्नीफाइंग पावर के लिए वी यूज रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप. The only disadvantage is that कि reflecting type of telescope fixed होते हैं. They are not mobile. They are not portable. You can't move them place to place. एक जगह एक बार तुमने मिरर को प्लेस कर दिया, फिक्स कर दिया, तो वो वही रहेगा. But since we can construct mirror of larger aperture, it's quite good. Like we use parabolic mirrors generally because large mirror अगर होगा spherical, तो उसमें spherical aberration होते हैं, तो parabolic mirror यूज करते हैं. इसको माउंट कर देते हैं फिक्स्ड ऑन सम हाइट, और उसके बाद इट इज मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विच इज हेवनली बॉडी. वहां से रेज आएंगी पैरेलल, दिल ट्राई टू कन्वर्ज एट द फोकस. यहाँ पे वी हैव अ प्लेन मिरर जिससे इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे रेज को इनटू एन आई पीस. दिस इज न्यूटोनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप. यहाँ ऑब्जर्वर है. स्फेरिकल मिरर की जगह वी यूज पैराबोलिक मिरर. पैराबोलिक मिरर में spherical aberration नहीं होगा एंड वी कैन यूज एज लार्ज एज साइज ऑफ मिरर. नो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट. मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा इसका? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस. मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? r/2. r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज अ न्यूटोनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप. इसका एडवांटेज क्या है? इसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा है और स्फेरिकल एबरेशन नहीं होगा इसमें, क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होगा बिकॉज लेंस यूज नहीं हो रहा है. डिसएडवांटेज ये है कि इट्स फिक्स्ड एट वन प्लेस. वी कैन नॉट मूव इट प्लेस टू प्लेस. इट्स इमोबाइल और इट्स फिक्स्ड एट प्लेस. तो ये इसका डिसएडवांटेज है. रिफ्लेक्टिंग में एक और भी होता है, कैसे ग्रेनियन.
वैसे तो जनरली वी यूज दिस ओनली। उसमें क्या होता है, बीच में होल होता है यहाँ पे, एंड इन प्लेस ऑफ प्लेन मिरर यूज यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ से जो रेज आती हैं वो कन्वर्ज होके इसके होल से आईपीस लेंस में चली जाती है। ये डिफरेंस होता है बस। कैसे ग्रेन टाइप? तो वो वाला ही बना देना, वो इजी है बनाना। अब ऐसे करते हैं, क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं इसके। असाइनमेंट खोलो, उसमें शुरू में जो क्वेश्चंस दिए ना वो करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड 2025। स्टार्ट आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। ISC 2025 assertion: when a convex lens made of glass is completely immersed in water, its focal length increases. सही है गलत है? जब भी किसी लेंस को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? फॉल्स नहीं है ये। नहीं, बहुत बिल्कुल सही है। जब भी किसी लेंस को पानी में डालते हो तो उसकी फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाती है, देन वो प्रोवाइडेड ऑपोजिट किस में होता है वो कि जब कॉन्वेक्स। सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के उससे ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो जब भी लेंस का मटेरियल का फोकल लेंथ होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ द लेंस बाय म्यू ऑफ द सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो अगर म्यू ऑफ द लेंस 1.5 है और लेंस की फोकल लेंथ एयर में सब मान लो 25 सेंटीमीटर है, तो वाटर में इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। Fa × 4 हो जाती है, 100 सेंटीमीटर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 है तो पानी में डालते ही वो उसकी फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाती है। इसको तुम कर भी सकते हो सॉल्व। एफ इन वाटर कैसे निकलेगा? म्यू ऑफ लेंस 1.5, ये 4/3 - 1, इसको एक्स ले लो। एयर में तुम्हें फोकल लेंथ दे रखा है, एफ ऑफ एयर कितना होगा? 1.5/1 इंटू एक्स। दोनों का डिवाइड कर दो, आंसर आएगा, 4 टाइम्स आंसर आता है। अगर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नहीं है, 1.48 है, 1.45 है, 1.55 है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी फोकल लेंथ बढ़ेगी, बट 4 टाइम्स नहीं होगी एग्जैक्टली, बट इट विल ऑलवेज इंक्रीज। अब सेकंड या रीजन क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, ये सही है क्या? गरिमा, हाँ ट्रू है। ट्रू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हुआ? म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ वाटर। दिस इज 3/2, दिस इज 4/3, 9/8। 9/8 कितना हुआ? 1.125। जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हुआ? सिंपली 3/2।
तो ये तो सरासर झूठ है। तो इसका आंसर है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी। नेक्स्ट करो सेकंड पार्ट। असाइनमेंट में ही आंसर लिख लेना और ये भी कर लिख लेना अपना, रीजन भी लिख लेना वहीं पे, ताकि व्हेन यू रिवाइज इट तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या किया था। Diffraction of light is difficult to observe in everyday situations but can be observed in laboratory conditions। सही है ये तो। मैंने बताया डिफ्रैक्शन पैटर्न तभी प्रोमिनेंट होता है when size of opening or obstacle is order of wavelength of light। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत कम होती है, और जो ऑब्स्टेकल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में वी कम अक्रॉस आर नॉट ऑफ दैट ऑर्डर। जबकि साउंड का डिफ्रैक्शन हम देख पाते हैं। अगर हम एक कमरे में बैठे हैं तो हमें दूसरे रूम में साउंड सुनाई देगी, बिकॉज साउंड कैन टर्न अराउंड विंडोज एंड डोर्स। तो साउंड की वेवलेंथ जनरली जो घर में विंडोज और डोर्स होते हैं उनके आसपास होती है। फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न टू बी मोस्ट प्रोमिनेंट, सही है। size of obstacle should be of order of the wavelength। तो assertion इसका ट्रू है। टू प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन ऑफ वेव साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी कंपेरेबल टू द, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये ये जो हो सेकंड क्वेश्चन था, दिस इज करेक्ट रीजन एंड असर्शन दोनों। तो इसका कौन सा आंसर हुआ? ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया ये। असर्शन रीजन में सही आंसर के लिए तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। तुम लोगों की नैया इसमें डूबती है असर्शन रीजन क्वेश्चन में। सीरियसली टेक्स्ट बुक पढ़ने की तुम्हारी आदत तो है नहीं अब। जब तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हुए असर्शन रीजन डिफिकल्ट टू आंसर। नेक्स्ट करो, स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी में एक ही बार टी आर होता है। हाँ, जनरली रेनबो क्यों फॉर्म होता है? और रेनबो को देखने की कंडीशन क्या होती है? सन हैज टू बी एट द बैक। जो वाटर सस्पेंडेड ड्रॉपलेट होती है पानी की, उसमें लाइट एंटर करती है। हम इसको व्यू कर रहे हैं यहाँ से, सन पीछे है हमारे। तो यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर टी आई आर होगा यहाँ पे, और फिर नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है। दो बार रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ रिफ्रैक्शन, यहाँ टी आई आर हो रहा है, एंड देन इट रीचेस टू आवर आई एंड वी कैन सी रेनबो। जबकि सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है? प्राइमरी, ये प्राइमरी रेनबो एक ही बार टी आई आर हो रहा है, और कलर सीक्वेंस क्या होता है? यही है, एक और आएगा, ठीक है। ये कलर सीक्वेंस होता है। सेकेंडरी रेनबो में दो बार टी आई आर होता है, एंड द सीक्वेंस इज ऑल्सो रिवर्स्ड। रेड नीचे होता है। सो हम्म। सर हमारे एक फाइनल में क्वेश्चन आया था, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक टू द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द साउंड वेव्स? उसका क्या आंसर होगा? साउंड वेव्स। हाँ जी, लाइक हाँ लाइट तो की वजह साउंड के लिए ऑब्जर्व करना हाँ, है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्लिट साइज है उसको 1 मीटर है, 1.5 मीटर कर देंगे। ओके। स्लिट, हाँ, ओनली स्लिट, बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन उस साउंड के लिए भी हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे साउंड? नहीं, वहाँ पे तुम्हें साउंड के लिए तुम्हें बेसिकली क्या होगा वहाँ पे, कुछ हेयरिंग
सपोर्ट वहाँ पे रखना पड़ेगा, स्क्रीन की जगह वहाँ पे आएगा, माइक्रोफोन वगैरह ओके, आएगा। ठीक है। तो ठीक है किसी सर। पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, जहाँ पे हम्म। कंस्ट्रक्टिव होगा, जहाँ किसी पॉइंट पे इंटेंसिव साउंड कम हो जाएगी। जहाँ पे तुम्हें ब्राइट और डार्क नज़र आ रहा था, उसकी जगह तुम्हें सेंसर साउंड सेंसर लगाने पड़ेंगे, जस्ट टू हम्म, नो द मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और दूसरा स्लिट साइज बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है सर। Hubble telescope employs a large parabolic mirror as an objective. State any one advantage of using mirror in place of lens in such a telescope. बता दिया था मैंने। सबसे पहली बात, मिरर को यूज करने से स्फेरिकल एबरेशन नहीं होगा, क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होगा। दूसरा एंड थर्ड थिंग इज हायर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर भी ज्यादा हो जाएगी, रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज इफ यू सी इन टेलीस्कोप, आर जो था रेडियस का कर्वेचर न्यूमरेटर में था, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट, जितना बड़ा हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना उतना बड़ा हम बना सकते हैं विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होता है। रिजॉल्विंग पावर पता समझते हो क्या है? कि अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत पास पास हैं, देन द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू व्यू देम सेपरेटली इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर भी इसका ज्यादा होगा। तो हमें तो एक ही लिखना था। इफ यू वांट यू कैन राइट टू ऑल्सो, अगर तुम यू आर श्योर दो भी लिख सकते हो, बट 1 मार्क का है तो एक ही लिखो, ज्यादा लिखने कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है। हायर मैग्नीफाइंग पावर लिख दो, या फिर नो स्फेरिकल एब्रेशन और नो क्रोमैटिक एब्रेशन, वो सारे डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अब ये न्यूमेरिकल है, कर लो। 2 मार्क का है, IC 2025 का क्वेश्चन है। हम्म, 2 मीटर। Objective telescope consists two lenses kept in contact. One lens has an optical power of 2 diopter positive. Other lens has optical power of -1.5D. कॉन्टैक्ट में तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी हो जाएगी? So it will be -0.5, आई एम सॉरी, 0.5 पॉजिटिव। सो द फाइनल लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्ट कर रहा है एज एन कॉन्वेक्स लेंस ओनली। उसने क्या पूछा है? हम्म, तो फोकल लेंथ के लिए क्या करोगे? यस, तो P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स, है ना? तो F आ जाएगा 2 मीटर। तो 2 मार्क्स फ्री के थे तो बिल्कुल ही। A convex lens having small focal length to be used as a magnifying glass. It's a simple microscope. To obtain an image of a small diamond, the image lies at a distance of distinct vision. Where will you keep the diamond to obtain its image at D? बताओ। सिंपल माइक्रोस्कोप में तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम ही है। टू गेट मैग्निफाइड एंड लार्ज इमेज, object has to be placed between the optical center and the focus। बस इतना करना है तुम्हें। यहाँ पे रख दो उसको।
बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। रे डायग्राम भी बनाना है क्या? हाँ, तो दूसरों पॉइंट 3 मार्क का क्वेश्चन है वैसे। स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। virtual erect one. या इन रियल, नो इट्स नॉट रियल, वर्चुअल एंड Vir- लार्ज इरेक्ट, है ना? वर्चुअल एंड लार्ज एंड इरेक्ट। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है किसी भी क्वेश्चन में, वो तभी दोगे व्हेन यू डबली श्योर कि जो तुम करे वो सही है। पास थ्रू फोकस, अनदर थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। मतलब जितना पूछा उतना ही आंसर करके। थैंक यू वेरी मच। Enlarge, virtual, and on the same side as the object is. इसका रे डायग्राम भी आ सकता है 3 मार्क का। बनाया था ना हमने। A parallel beam of light is traveling obliquely from an optical rarer medium to an optical denser medium. Draw a level diagram showing incident refracted wavefronts. Mark angle of incidence and angle of refraction, ये दो में आते हैं। And use Huygens wave theory to prove the law. Do you know this? How to prove law of refraction? याद है? उसने मेंशन भी किया है कहाँ से कहाँ वेव फ्रंट जा रहा है। इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। याद है ना? पूरा कंस्ट्रक्शन करके दिखाना होगा। नेक्स्ट अप, फॉर एनी प्रिज्म शो दैट दिस आल्सो यू नो। नेक्स्ट वाला कर लो। टू आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर स्लिट्स 5 मिलीमीटर अपार्ट आर इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। द स्क्रीन इज 1.25 2 मीटर अवे फ्रॉम दिस कैलकुलेट डिस्टेंस। ये कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट का है। 3 मार्क करें। YDSC पर है। स्मॉल डी जो भी गिवन है एक बार उसको लिखते जाओ। 5 millimeter, convert this into meter. Screen distance, capital D. Calculate the distance of the fifth bright band on the one side and the third bright band on the other side of the central bright fringe. ब्राइट बैंड का तुम्हें डिस्टेंस मालूम है क्या होता है? nth ब्राइट बैंड का डिस्टेंस होता है n लैम्डा d/d। तो पहले फिफ्थ का निकालो ऑन दिस साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, 5 लैम्डा d/d हो जाएगा। और फिर थर्ड का निकालो ऑन द अदर साइड, इट विल बी 3 लैम्डा d/d। चुपके से दोनों को ऐड कर दो। So the required distance would be 8 lambda d/d. Value substitute कर दो। Because these are on the other side of the central bright fringe.
अगर सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं इन दोनों को। वेवलेंथ हमें दे रखा है 600 नैनोमीटर। lambda is 600 10 to the power minus 9. So as you know, this is central bright fringe on the screen. Then you have first dark this side, first dark this side. This is CBF. Second dark, second bright. Second dark, second dark. Third, third, like that. Center से distance measure होता है। इधर हमने निकाला फिफ्थ ब्राइट, इधर हमने निकाला थर्ड ब्राइट, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के लिए ऐड कर दिया। अगर ये दोनों सेम साइड होते तो हमें माइनस करना पड़ता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। द आंसर इज 1.152 मिलीमीटर। यही है। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वेवलेंथ को रिप्लेस कर दिया है, तो वो चेंज हो जाएगा बस। ये भी आ सकता है कि द एंटायर apparatus इज submerged in a liquid of refractive index this, how would you answer change? तो फिर लैम्डा की जगह लैम्डा डैश डैश आ जाएगा, एंड लैम्डा डैश कितना होगा? लैम्डा बाय म्यू। लैम्डा बाय म्यू। ये भी आ सकता है, फाइंड द एंगुलर width of the angular distance of the fifth। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला मालूम था ना तुम्हें? एन ब्राइट वुड बी वाई एन बी बाई कैपिटल डी। ये रेडियन में आंसर आता है। दिस इज एंगुलर विड्थ और एंगुलर डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। तो practice more questions, and then next class we'll continue. Ending the class. See you next time. Bye, so thank you. Bye.